Assalamu alaikum. This is Mubashir Anjum, and welcome to the Wales podcast, where we pause the chaos, breathe deep, and ask real questions about our faith and future. And today, the topic is faith in the fast lane, and it's the one that speaks directly to our generation. Today, we have a very special guest amongst us who has been shaping young minds since 2 decades now. He has been the former media manager of Youth Club and is currently the regional head of Sindh over there. It's a pleasure to have you with us, Ustad. Assalamu Thank you. alaikum. Walaikum assalam. Thank you, Bashir and Naima, to invite me on your podcast. It's an honor. Thank you so much. I'm still with Youth Club, by the way. Yes. Okay, so let's just starting with a very basic question, Sheikh. We often have heard about spirituality, spirit and spirituality. हो सकता है मेरे लिए spirituality कुछ और हो सकता है आपके लिए कुछ और हो कोई कहता है meditation is spirituality for them and कोई कहता है मौसीकी रूह की ग़िज़ा है. So what is basically spirituality and with regards to Islam, obviously? Of course, when we talk about certain aspects with it, it's related to spirituality or any other aspect of the unseen. इंसानों के बहुत सारे मसाइल और उनका जो एक हल होता है वो इंसान की अपनी speculations के ऊपर होता है. But as a Muslim, whenever we try to be able to find answers with regards to something which is not in the apparent world, we always turn towards the revelation. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्लियरली कहा है कि जो रूह है, जो स्पिरिचुअलिटी का मामला है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अमर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक ऑर्डर है, and you have not been given much knowledge about it. So which actually comes to the point कि हमें revelation की तरफ जाना पड़ेगा to be able to know what spirituality is. Of course, a lot of people might turn towards meditation or anything, and it all links towards the fact that they, concluded to deep thinking, concentration, to be able to focus more towards the soul and the body, and you distract yourself from the worldly, elements, and be able to focus more towards your inner self. Allah subhanahu wa ta'ala ने भी आपको वो elements दिए हैं, but they are focused towards acquiring a connection with your Lord. Because of course जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको ये बात कही है कि वो अल्लाह ताला का अमर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको मुझको नॉलेज नहीं दी, so Allah is going to dictate to us, be able to guide us how to be able to utilize that spirituality and be able to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. And that you see from the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was in cave Hira, he was in seclusion, he was focusing. But Allah subhanahu wa ta'ala said, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, you did not know what was the right path, how to be able to go about it, and we guided you. And that is when the revelation was revealed, to be able to understand that it's not just concentration, meditation, but also saying certain words which affect your spirituality, doing certain actions which affect your spirituality. So first and foremost, we understand that our body is a worldly material. It is going to end with the world. And that is why some of the scholars of the past used to say कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में जिस्म की अहमियत होती, Allah would never have allowed it to be able to burn in the ground. But Allah subhanahu wa ta'ala has importance in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, ruh ki importance. That is why it goes up. That is why we need to be able to understand. And of course, there's an entire detail. Human understanding has more than 300 answers for spirits. But of course, when it comes to an understanding which Allah has guided us towards, then we turn towards that, be able to come to that conclusion. So spirituality is more about connecting with Allah subhanahu wa ta'ala, doing things which allow us to get more closer. I cannot stand on one feet and say I'm acquiring spirituality. It might be making me get tired, but my actions are going to be based on making my soul stronger to be able to get more stronger in relation with Allah subhanahu wa ta'ala. जज़ाकल्लाह शेख. एक और सवाल जो इसी से रिलेटेड है वो ये है कि जब हमने अक्सर सुना है दीन ओवर दुनिया या दीन और दुनिया, ये बंदा दीन और दुनिया बैलेंस लेकर चलता है, तो क्या ये कह के हमने एक परसेप्शन दिया है लोगों को कि दीन और दुनिया आज टू सेपरेट एंटिटीज़ और एक दीन एक एडिशनल बर्डन है जो हमें लेकर चलना है, एंड स्पेशली विद रिगार्ड्स टू यूथ कि वो किस तरह से दीन और दुनिया को बैलेंस लेकर चल सकता है विद एजुकेशन, जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अदर थिंग्स. So, are we truly struggling with time, or are we struggling with what we truly value? I think that's a very good question, because देखिए दीन और दुनिया सेपरेट नहीं है.
in simple words, because आपको दीन दुनिया में ही दिया गया है दुनिया गुजारने के लिए. At times from the religious side बहुत ज़्यादा एक higher level of कहते हैं रिक्वायरमेंट आती है जिसको लोग बोलते हैं कि शायद अप्लाई करने के लिए एक हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी को अक्वायर करने के लिए शायद हमें दुनिया छोड़ना पड़ेगा. You know, spirituality is not about leaving your worldly affairs. In fact, being in this world, being able to do what Allah has made halal for you is part of your spirituality. So हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी दफ़ा ये बात पूछते हैं कि सर मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा. मैंने देखा अल्लाह ताला ने छोड़ने की चीज़ें बोली बहुत कम है. वो अलग बात है कि वही मार्केट की जाती हैं. एंड आई ऑलवेज गिव द स्टूडेंट्स द एग्जांपल कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पूरी जन्नत दिया था और वो तो एक दरख्त की तरफ नहीं जाना. जैसे आपने भी स्कूल में किया होगा, कभी मैं भी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि हम बोलते हैं बच्चों को कि बेटा पूरी क्लास में बैठ सकते हो, टीचर की सीट पे नहीं बैठना, नहीं टीचर की एब्सेंस में वहीं जाके बैठते हैं. ठीक है, वो जो मना करते हैं उसी पे करते हैं, तो जो मना किया जाता है उसी तरफ जाते हैं. तो यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर टिप्स. So Allah subhanahu wa ta'ala ने आपको बहुत कम चीज़ें मिली, and the entire challenge of the deen is to be able to stay within the limits of Allah subhanahu wa ta'ala, what Allah has prescribed us not to do and what to do, and being in those limits, being able to flourish and do and excel in your worldly life as much as possible. तो दीन के देखिए, दीन की अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले देखने कि हम समझते हैं शायद नमाज रोज़ा हज ज़कात ये दीनदारी है. दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियोसिटी. आपकी ये जो रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट है ये आपकी दीनदारी का एक हिस्सा है. बट द अदर वन इज़ योर इखलाक, योर मैनर्स, हाउ यू आर विद योर रिलेटिव्स, हाउ यू आर विद अदर्स, हाउ यू आर विद दोज हु आर नॉट ऑन योर लेवल. मीनिंग ऑन योर लेवल, कभी कभार आप बोलते हैं कि आप एक बड़े बादशाह से तो बहुत अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं, बट आपका जो काम करने वाला होता है चाहे वो उम्र में बड़ा हो, आप उसके साथ इज्जत नहीं करते बिकॉज यू डोंट हैव द फियर ऑफ लूजिंग समथिंग फ्रॉम दैट इंडिविजुअल. तो आप बोलते हैं इसको मुझे देना पड़ेगा रादर देन इससे लेना. तो आपका मैनर्स, आपके इखलाक वहाँ पता चलते हैं. आपका लेन देन कि आप किस तरह से लोगों के साथ लेन देन का मामला करते हैं, हाउ ऑनेस्ट यू आर विद रिगार्ड्स टू योर affairs with the people, in terms of your business dealing, in terms of you keeping people's amana, people come to you for advice and how you keep them to yourself, and your talluqat with your relatives, with your close ones, how you are able to be good to them even though they treat you in an unfair manner. तो ये सारी चीज़ें मिला के आपकी religiosity है. तो इसमें मुझे बताइए कि दीनदारी नहीं आ रही, दीनदारी के साथ दुनियादारी नहीं आ रही. तो आपको दीन में तो यही सिखाया गया है ना. तो हम कभी कभार बहुत ही एक ऐसा वर्जन समझते हैं जो कभी कभार इंसान सारी कुर्बानियां देकर एक्वायर करता है फॉर नथिंग. इफ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज एंड आई वांट टू बी एबल टू यू नो project the message of Islam, I have to be able to acquire a certain level. That is fine. If somebody wants to go that level, fine. But a student who is there, who's struggling with certain things, finances and everything, उसके लिए तो बहुत मिनिमल चीज़ें हैं. तो हराम से दूर रहना है, गुड जितना अच्छा हो सकता है वो करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराज़गी को ना करें, and be able to keep your heart as safe as possible from all other things. चाहे वो मोहब्बत हो अननेसेसरी, चाहे वो ऐसी चीज़ें देखना हो, चाहे कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो. दैट इज़ द एंटायर चैलेंज ऑफ बीइंग. जज़ाकल्लाह शेख. आगे बढ़ाते हुए पॉडकास्ट को एक और क्वेश्चन है कि यूथ जब हर किसी की लाइफ में ऐसा फेज ज़रूर आता है जब स्पेशली यूथ की बात करूँगा कि जब वो कनेक्ट होना चाहते हैं दीन से, जब होता है कि यार दीन की तरफ आ जाते हैं, अब कोई भी ऐसे हालात आ जाते हैं, तो उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर लोग जोश में कह तो देते हैं कि दीन की तरफ आ रहे हैं लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते. तो क्या स्टेप लेना चाहिए एंड स्पेशली पेरेंट्स के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना चाहिए? अक्सर हमने सुनने को देखा है कि पेरेंट्स कहते हैं कि यार दीन की तरफ आ जाओगे रिश्ते नहीं आएंगे या आगे नहीं बढ़ पाओगे, जॉब्स अच्छी नहीं लगेंगी वगैरह वगैरह. तो उनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और सोशल प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हुए आप दीन की तरफ आ सकते हैं? वो फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स क्या होंगे हमारे दीन की तरफ? चलिए एक काम ही करते हैं कि ताकि ये Q&A सेशन ना रहे, मैं आपसे पूछता हूँ, हाउ हैज़ योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग ने आपको कैसे हेल्प किया है, व्हाट द चैलेंजेस यू फेस्ड अप टिल नाउ इफ यू वांटेड टू बी एबल टू फॉलो योर रिलीजन? ओके, आई वुड से कि जब मैं देखता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा नेक कोई है ही नहीं. बहुत ज़माने की बुराइयाँ को देखता हूँ तो कि मैं तो ये सब नहीं करता तो मैं नेक हूँ. कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा जो है वो गुनाहगार ही कोई नहीं, कि इतने लोग हैं. तो ये मुझे कांस्टेंट एक स्ट्रगल रहती है, फ्लक्चुएशन रहती है ईमान के अंदर के मैं कभी कभी लगता है बहुत नेक हूँ, कभी कभी लगता है बहुत जो है वो बुराई में पड़ा हुआ हूँ.
तो इस ये समझे मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसको हैंडल करना और किस what तरह about you, से। Naima? ठीक है, क्या challenges face है आप माशाल्लाह से you know wear your hijab, Yes. कॉलेज में भी होते हैं, जी, सब कुछ जी. कर रहे होते हैं, तो the reason I'm asking question because of course the students have to be able to relate to it ना, जी, कि उस्ताद. आपने क्या फैमिली की तरफ से कोई pressure anything, not to say everything because the family will be listening to it. नहीं नहीं उस्ताद, thank you for the question. Hijab has been something very personal to me and I have been doing it since 8 years now. Alhamdulillah. It was never family की तरफ से, मुझे खुद महसूस हुआ कि अगर अल्लाह ताला ने हमें ब्यूटिफाई करके भेजा है एज अ वुमेन, सो आई जस्ट पर्सनली फील है कि वो चीज़ मेरे लिए इतनी प्राइवेट है कि मैं उसका एक्सेस सबको नहीं दे सकती. नॉट एवरीबडी डिजर्व्स टू सी द ब्यूटिफाइड वर्जन ऑफ मी एंड दैट्स व्हाई आई चोज टू डू द हिजाब टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम दिस. तो हिजाब करने से भी बहुत सारी मुश्किलात उसके साथ आती हैं. उस वे के अंदर बहुत लोगों से जजमेंट्स पास होती हैं, क्योंकि जैसे ही आप दीन का कोई भी स्टेप लेना शुरू करते हो, यू स्टेप इनटू द आउटर वर्ल्ड, देयर आर सो मेनी जजमेंट्स आउट देयर कि फ़ौरन से आपको जजमेंट्स होना शुरू कर देते हैं लोग कि आप सही तरीके से नहीं कर रहे, दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट, एंड इट कम्स विद सो मेनी पर्सपेक्टिव्स कि इट गेट्स हार्ड फॉर यू. सो आई फील लाइक कि एक तो ये मसला बहुत रहता है कि community, it doesn't let you fit in when you are making decisions for yourself which are good decisions related to deen. They always judge you for it. और उसी के साथ में फिर दूसरा एक्सट्रीम भी आता है कि जहाँ लोग ये बोलते हैं कि आपको ये पहनने की क्या ज़रूरत है, आप तो इसके बगैर ज़्यादा अच्छे हैं, आप इसके बगैर इतने सारे लोग हैं जो नहीं पहनते हैं. सो उसके साथ डेफिनेटली स्ट्रगल्स आती हैं, लेकिन मुझे जो ज़्यादा मुश्किल ये फील होती है अपनी जनरेशन के अंदर वो ये है कि spiritual connection with people is very hard to find these days, whether it be with your friends, whether it be with your relatives. It's like it's very hard to find those pure hearts amongst. मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत नेक हूँ, obviously I do my sins and repent, but just the thing is कि वो spiritual connection बहुत missing है इस दुनिया से. जो friendships हैं वो बहुत temporary हैं, और there's just, और जैसे ही आप you start talking about deen, you start talking about the things that actually matter, people start seeing you with wide eyes कि what is she talking about. एकदम से मतलब हम तो chill friends की बात कर रहे थे, हम तो hang out करने की बात कर रहे थे, ये एकदम से इतना deep दुनिया के बारे में, दीन के बारे में कैसे लेकर बैठी है. So yeah, the judgments, they hurt like a dagger to your heart sometimes when you're just trying your best to be out So there. this 8 years जो आपने journey पे चले, it did not happen overnight, right? Yes. Slow process, and that this is the exact thing that I want the youngsters to listen, that it is not, the change is not supposed to happen overnight. You take it as much as you're able to stay consistent with. हम यहाँ पर जो है ना दीन के मामले में वो thought process change कर देते हैं. हमारा जो दुनिया के मामले में होता है ना, हम मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनते हैं, you need to grind, you need to be able to not stay in the comfortable zone, you need to make decisions which are actually going to reward you, 10 years later. But when it comes to religion, जो personalities निखर के आती है ना कि मैं दुनिया की जो comfortable state में लोग रहना चाह रहे हैं, to be acceptable, to be able to allow the masses to accept me, मैं उसको छोड़कर मैं वो चीज़ करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ जो मेरे लॉर्ड के सामने, मेरे अल्लाह के सामने मैटर करता है. और I am brave enough to be able to not be a victim of the FOMO, to be able to have this fear of missing out, but actually do what actually matters in my life. Because I am making that decision, and I'm willing to take the hate, I'm willing to face the judgment, I'm willing to be able to take any retaliation from my family and be patient about it, be able to allow myself to grow emotionally, physically, spiritually, intellectually, all in the same process, because I know this is what is going to last with me. This is exactly the kind of process I went through. Family, friends, my field that I was involved in, because you at times come to that level of maturity which other people around you are not, because Allah makes you go through that stage where you grow, you realize, you start to see not things with your eyes but with your heart. राइट. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना कुरान के अंदर कि है ना कि इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समा फ़हुव शहीद, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुरान की आयत निशानियां हैं, लेकिन उसके लिए निशानियां नहीं है जिसके पास दिल नहीं होगा, जिसके पास आंखें नहीं होंगी, जिसके पास कान नहीं होंगे. कान सबके पास हैं, आंखें सबके पास हैं,
But you know, when Allah gives you this guidance, आपको बहुत, this is the example, the metaphor that I gave, कि आपके पास $10 million आ रहे हैं, तो आप बोलो कि $10 million, यार मैं ये भी खरीदूं, मैं ये भी खरीदूं, मैं ये भी खरीदूं, एक हफ्ते में उड़ा के खत्म कर दिया. But एक smart individual क्या करेगा? I need to make investments. I need to be able to hold on to the money. I need to buy certain things which I want right now. Yes, but I need to also be able to invest so that I can actually not allow my future to be at stake. ठीक है? My family to be at stake. तो आपको religion की जब thought process आती है ना, वो तो यार this is a guidance, I need to hold on to it right now. I need to do small steps जो हमें लगता है कि जो matter करते हैं. When I got interested in religion, I started working on small elements. दुआएं पढ़नी हैं जो मेरे को 24 घंटे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जोड़े. वॉशरूम जाने आने की दुआ, खाना खाने की दुआ, खाना खत्म करने की दुआ, घर से निकलने की दुआ, गाड़ी में ट्रैवल करने की दुआ, कपड़े पहनने की दुआ. All of these things were actually working on my spirituality. But हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं now I've become religious, I need to talk about big stuff. Because at the end of the day, was it really about you and your Lord, or was it about you being able to be seen like this in front of other people? So we need to be able to change that. That Allah subhanahu wa ta'ala ने आपको क्या कहा है? लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला. कि आपको अल्लाह ताला ने जिंदगी मौत से टेस्ट करना है ताकि आपको दिखा सकें कि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप में से कौन है जो बेहतरीन अमल करता है. अल्लाह ताला नहीं कहना अक्सर अमला कि कौन ज़्यादा अमल करता है, पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोटे ही अमल, थोड़े अमल, लेकिन क्वालिटी बेस्ड अमल. तो हम अगर रिलीजन में आते हैं ना, तो सबसे पहले तो मैं यंगस्टर्स को बोलूँगा, देखिए द फर्स्ट थिंग यू नीड टू फिक्स इज योर सलाह. ठीक है? एंड थिंग्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट. You need to allow yourself to be consistent. You need to be able to make yourself steadfast on the 5 prayers. These are your key. नमाज सही नहीं है. मेरे पास ऐसे दोस्त भी थे जिन्होंने दाढ़ी रख ली लेकिन नमाज के लिए नहीं आ रहे थे. Eventually they turn back. Why? Because जो चीज़ पिलर है, जिसका सवाल पहले होगा, आप वो नहीं करोगे. आप बोलोगे तो आप क्या कर रहे हो? दाढ़ी दिखती है, हिजाब दिखता है, तो रिलीजियोसिटी दिखती है, तो आपका एक इंटरनल एक ईगो होता है. आप बोलते हैं यार now I'm on the improvement level, people are able to see it. But what about Allah? Allah subhanahu wa ta'ala क्या देख रहे हैं? हम हमेशा लोगों को बोले take small steps. It is very those micro steps, those atomic habits develop within yourself to be able to stay consistent. You going for a healthy routine. You don't do this drastically. कीटो कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, बाद में फिर कीटो चल रहा होता है. ठीक है? तो कीटो कर रहे हो, आपने small step, you need to change your lifestyle. I've seen people doing keto and not acquire. You change your lifestyle. You make it a priority that no, I'm not eating food for the taste of it, but for the fuel of it. I need to stay healthy. I need to be able to prioritize. Same thing with religion. I don't need to offer 20 rakat. I need to offer 4 rakat, but they have to be improved in quality. I need to surround and step by step increase it. तो हमारे youngsters जो जल्दी जाने की कोशिश करते हैं ना, वो at times इस under pressure में होते हैं कि शायद रिलीजन मुझसे ये रिक्वायर करता है, दीन मुझसे रिक्वायर करता है कि मैं ओवरनाइट की चीज़ें अपने ऊपर बर्डन ले लूँ. तो व्हेन अल्लाह वांट्स टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर देम, इफ यू रीड सूरह ताहा, अल्लाह सुब्हानहू ने क्या कहा कि अल्लाह ताला ने आपके लिए रिलीजन, जो दीन है, ये कुरान है, आपके लिए बोझ बना के नहीं भेजा. you don't have to make your life difficult for it. Take it as it is. Allah subhanahu wa ta'ala loves you. Allah subhanahu wa ta'ala wants you to enter paradise, and not just enter paradise but acquire the highest level of paradise. और आप अपने ऊपर बर्डन ना दें, बिकॉज आपके ऊपर ऑलरेडी दुनिया ने बर्डन देना है. रिलीजन आपकी जिंदगी को आसान करने के लिए आया है. मैंने दोस्त छोड़े, दोस्त क्या छोड़े, दोस्तों ने छोड़ा. ठीक है? क्योंकि यंगस्टर्स सुन रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, हमारे टाइम पर जो है ना बैटल ऑफ द बैंड्स पेप्सी का हुआ करता, तो हमारे दोस्त इन्वॉल्व थे. तो RO एक्चुअली वन, तो हमारा एक एक्सक्लूसिव वहाँ पर हो रहा था. आतिफ असलम की आदत का बहुत पुराना गाना, I'm sure यंगस्टर्स जब हार्ट ब्रेक होता है तो सुनते हैं. ठीक है? या कभी कुछ किसी से बात कर दी होती कि यार तुम अब बात ही नहीं करते, तो अब तो आदत सी हो गई है, ठीक है, वगैरह करते हैं. तो हमारा दोस्त जो थे ना सारे, दे ऑल मॉडल फॉर दिस वीडियो. तो वी वर ऑल पार्ट ऑफ दिस थिंग. And I realized when my conversations changed, I was started talking about religion, they actually started making fun of me. So I was like, maybe it's time for me to be able to, seclude and get attached with the books and be able to, take my time. And maybe if they want to be with me, fine. They start having. Allah gave me better friends. Allah ने मुझे बेहतर दोस्त दिए. Allah, मैंने कोई फील्ड छोड़ी, अल्लाह ने मुझे बेहतर फील्ड दी. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे
कभी भी ये रियलाइज़ नहीं कराया कि देखिए आपने मेरे लिए कोई चीज़ छोड़ने की दावा किया था, क्लेम किया था, तो आपको शायद कोई रिग्रेट हुआ, नहीं, मैंने आपको बेहतर दिया है। तो आपको दीन छोड़कर दीन के ऊपर आकर छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बहुत ज़्यादा बेहतर देता है। तो दिस मेंटालिटी दैट आवर किड्स नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग रिलिजन, आप चीज़ छोड़ नहीं रहे होते, आप अपने ही फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें एक्वायर कर रहे होते हो, जो आपको लॉन्ग टर्म बेसिस में पता चलता है। सो टेक इट स्लो, one step at a time, be able to take as much as you can handle, don't this the एक एग्जांपल थी कि अगर दरख्त होता है ना, वो बहुत ही अगर सख्त होता है अपने रूट्स पे, तो जब तेज हवा चलती है ना तो उसको उखाड़ देती है उसके रूट से। लेकिन अगर वो फ्लेक्सिबल होता है तो हवा आती है तो वो आगे पीछे घूमता है, बट अपनी रूट्स पे स्ट्रांग रहता है। अपनी रूट्स को स्ट्रांग करें, अपनी रूट्स को स्ट्रांग नहीं करेंगे तो यहाँ की हवाएं आपको उड़ा के ले जाएगी। बिल्कुल। अच्छा उस्ताद, इसी से रिलेटेड एक सवाल है। देयर इज़ दिस आइडिया फ्लोटिंग अराउंड कि जब इंसान अपने आप को दीन से नज़दीक कर लेता है तो ऑटोमेटिकली लाइफ के अंदर ईज़ आनी शुरू हो जाती है। और ये हमारे एल्डर से भी जो है, इन्होंने आगे की जनरेशन्स के अंदर ये कैरी फॉरवर्ड किया है हमने ये आइडिया। बट इज़ इट रियली ट्रू कि सिर्फ दीन से क्लोज़ होने से हमारी ज़िंदगी बन जाती है, कम्प्लीटली सेट हो जाती है? और इज़ इट कि दीन and being closer to Allah subhanahu wa ta'ala actually strengthens our inner resilience instead? What are your thoughts about this? देखिए इनिशियली जब आप दीन की तरफ आते हैं ना, तो माय पर्सनल थॉट्स आर कि अल्लाह ताला मेक्स थिंग्स इजियर। ठीक है, अल्लाह फिल्टर्स आउट थिंग्स जी। बिकॉज़ उस वक्त आप नए नए होते हो, आप छोटे से एक पौधे होते हो, उसको डाला होता है, जब उसकी खाद स्ट्रॉन्ग होना शुरू होती है, उसके रूट स्ट्रॉन्ग होना शुरू होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए कस्टमाइज जो है ना डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस भेजते हैं। बिकॉज वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट, आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बिगर गोल के लिए, बिगर पर्पस के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो आपके लिहाज से आपको जो है उसी तरह का बर्डन आ रहा होता है। तो आप जैसे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो हदीस कुदसी है कि जब बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है तो उसके अफ़ैज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रिस्पॉन्सिबिलिटी में होते हैं। जब वो नमाज़ छोड़ देता है तो वो अल्लाह ताला की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं रहता। तो उसका एक एग्जांपल इस तरह से कहती है कि अल्लाह सुब्हान देखिए जो बिलीवर होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाफ़िज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को खड़े होकर देर तक काबा के सामने इबादत करते थे। तो अबू जहल, अबू लहब वगैरह देख के मज़ाक उड़ाते थे, बोलते देखो ये कौन-सा मामला है कि यूजुअली लोग कोई ऑफ़र लेकर आते हैं तो ऐसी चीज़ लेकर आते हैं कि हमारे लिए ईज़ रहे, लेकिन यहाँ पर तो आपके लिए मुश्किल हो गई। But it was not difficulty for a person, he would enjoy it. He would, look forward to being able to pray for long hours. So एक बंदा मुश्किल में होगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका दिल मजबूत कर देता है, उसके दिल में एक रब्त कायम कर देता है, स्ट्रेंथ कायम कर देता है। दूसरा देखने वाला उसको डिफिकल्टी में देख रहा होता है। But what they do not understand that Allah subhanahu wa ta'ala at times is, taking things away from him because it would harm him or her in the longer run, but making him stronger because so that he does not get attached with this world. और कभी कभार अल्लाह ताला, जैसे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात दीन में बर्दाश्त की वो अम्बिया ने की, उसके बाद जो सहाबा है, उसके बाद जो ईमान का जिसका लेवल है, तो जिसका जो ईमान का लेवल होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको वैसी ही मुश्किल देंगे। कभी भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किल आए, हमेशा ये बात अंडरस्टैंड कर दीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये तरीका नहीं है कि अल्लाह ताला आपको मुश्किल भेजे और मुश्किल भेजे तो आपके पास सोल्यूशन ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुश्किल से कहीं पहले आपको उसके निकलने का रास्ता बताते हैं। यू नीड टू बी एबल टू ओपन योर आइज़। अब आप जो एग्जांपल समझते हैं वो भी समझाऊंगा। अब आपने 8 साल किसी भी हराम रिलेशनशिप में लगाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाज गिविंग यू साइंस, ठीक है, आपको हर तरह से आप बोल रहे थे नहीं मुझे ये दरवाज़ा चाहिए, मुझे ये दरवाज़ा चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बता रहे थे नहीं, तुम्हारे लिए तुम डिटॉक्स हो जाओगे, तुम पहले निकलो, तुम्हारी अटैचमेंट खत्म हो जाएगी, तुम ये होगा वो होगा, बट यू आर नॉट विलिंग टू look away from that particular door. You keep on knocking on that door until you learn it through a hard pill. That door was never meant to open for you, right? You were knocking on the wrong door, and that is when you become disappointed. But still, Allah Subhanahu wa Taala then recovers you after some time by being able to make you understand कि देखिए नहीं, ये आपके लिए नहीं था. If it was meant for you, you would have gotten it regardless of whether you tried it or not. बट हमने ये बात समझानी कि देखिए अल्लाह ताला ने आपको सॉल्यूशंस पहले दिए हुए होते हैं, आपको निकलने का रास्ता होता है। बट एट टाइम्स हम समझते हैं कि शायद झटपट सॉल्यूशन आ जाएगा, उसका प्रोसेस गुजरना। देखिए डिफ़िकल्टी, सैडनेस,
is an essential part of your life. It is an essential part of your life. As humans, we want to run away from it. There are researches now कि आपकी ज़िंदगी में sadness बहुत important role play करती है. If you're willing to make it your fuel, it can make you acquire things in life जो आप कभी सोच भी नहीं सकते. आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा गम, आपकी डिसअपॉइंटमेंट, आप क्या करोगे? आपको ओवरकम करने की हैबिट डेवलप नहीं होगी. हमने यंगस्टर्स को कंफर्ट जोन में रहने की आदत डाल दी है, दुनिया के मामले में, आखिर मामले में. हमने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी सिखाया गया है कि नहीं, तुमने कंफर्ट की लाइफ की ट्राई करनी. यस यू कैन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इनिशियल लेवल पर आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें आपने गुजरना होता है. चाहे वो दीन होगा, दुनिया होगी, आपने उसमें डिफ़िकल्टी और एक्सपीरियंस एक्वायर करना होता है, उसमें अपने फाउंडेशंस पे काम करना होता है. उसके बाद आपका एक आउटकम लेवल आएगा, उस आउटकम लेवल पर आप जितना चाहेंगे उसको आप उसको रिट्रीव करेंगे, उसको इनकैश करेंगे. बट यू नीड टू बी एबल टू गो थ्रू दैट ग्राइंडिंग प्रोसेस. विदाउट दैट ग्राइंडिंग प्रोसेस यू आर नॉट गोइंग टू बिकम हू यू आर लेटर ऑन इन लाइफ. Definitely. Sheikh, since we're talking about the youth, मैंने personally ये notice किया है कि youth जो उनके दिल अगर दीन से दूर हैं या अगर वो दीन से distanced हैं, and it's like a chosen distance, तो उसकी वजह अक्सर बात ये है कि हमारी कल्चर कह लें, कम्युनिटी कह लें, उसके अंदर रिलीजन को एक ऐसे तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि ऑब्लिगेशन तो डेफिनेटली इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, बट दे हैव दिस आइडिया कि इट्स समथिंग वेरी स्ट्रिक्ट टू कमिट टू. एंड unfortunately in most of the hearts of the teenagers, the youngsters out there, अल्लाह सुब्हाना व ताला के लिए उनके दिल में जितनी मोहब्बत है उससे ज़्यादा उनके लिए डर है, which is sort of unfortunate, because if we are talking about our parents और हम कोई चीज़ ये सोच कर करें कि अगर हमने ये चीज़ कर ली तो उससे वो जो है नाराज़ हो जाएंगे और वो हमें पनिशमेंट दे देंगे, they will make us grounded and stuff like that. वो बेहतर है ज़्यादा, या ये बेहतर है कि हम उनकी मोहब्बत की वजह से ही हम बोलें कि 18 साल उन्होंने हमें पाला है, 18 साल तक उन्होंने हमारी परवरिश करी है और इतनी हमें मोहब्बत दी है, तो हम उनसे जो मोहब्बत करते हैं हम उनकी खातिर कोई गलत काम नहीं करते. सो डू यू थिंक दैट वी नीड टू शिफ्ट दिस माइंडसेट कि हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के जलाल के बारे में ज़रूर बात करें, लेकिन उससे पहले हम उनकी मोहब्बत के बारे में इतनी बात करें कि वो चीज़ कभी ऑब्लिगेशन लगे ही नहीं इंसान को. वो नमाज़ें, वो इबादत, वो अपने दिल से मोहब्बत से अल्लाह ताला के लिए करें. I totally agree with you, but that's how we got introduced to Allah subhanahu wa ta'ala through our parents as well. गंदी बात करेंगे, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे, ये फला करोगे. That's how we introduce Allah subhanahu wa ta'ala. And that is the reason where you guys come into play. कि देखिए, unfortunately, I don't truly believe कि लोग जो है दीन से दूर हैं. I believe majority of our youngsters are distracted, in a way away from religion. हमने जितना उनकी तरफ दावत दी है, हमने ये बात को रियलाइज़ किया है कि they have it in them. दूसरा होगा विंग, वो होप होगा. तो जब तक फेयर और होप बैलेंस नहीं होंगे वो उड़ेगा नहीं. उसका जो सर है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लव, मोहब्बत है, एंड दैट इज़ व्हाट कीप्स इट अलाइव. तो आपने जो बैलेंस है ना वो एक्वायर करना ज़रूरी है, बिकॉज एट टाइम्स Christianity in the name of love went too far. Because they were like, how can Allah punish me? I do this in the name. At the same time, Judaism in the name of fear of Allah subhanahu wa ta'ala, started believing that we are the oppressed, we are the cursed nation, and they became the cursed nation. You need to be able to understand that there is a balance. Yes, you don't need to disobey Allah subhanahu wa ta'ala, but if you end up disobeying Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is at-Tawwab. He just does not forgive once. He keeps on forgiving as long as you are sincerely with a true heart seeking repentance. And you are bound to make an error. You will fall short. You are not meant to be perfect. Allah does not desire you to be perfect. He wants you to be better than who you are. Better every day than you are right now. He wants you to keep on improving. He does not, if he wanted you to be perfect, he would not have given you those elements within you which make you imperfect. But that is the really idea why you're perfect, because out of all these imperfections that you have, it makes you above them. That is the reason why angels ask a question. Okay, why would you create something which is going to spread bloodshed when we are there to
glorify you, praise you. We are as a perfect creation who would not make a mistake, would not disobey you. Why do you need this creation who is going to fall short? And Allah said, I know more than you not. You do not know. Yeah, I know more. And that is what the reason is, that in spite of having these imperfections, in spite of having this inabilities, this Adam and the children of Adam have the ability to go beyond, surpass the angels or the jinns or the animals. And this is why Ibn Taymiyyah rahimahullah said that Allah has given you nafs and given you the spirit aspect. If you allow yourself to be able to overcome the nafs, your spirit becomes strong and you become higher than angels, because angels do not have that desire. Angels do not have that nafs. They do not have that desire. So it just does not make sense that they are going to be superior, because they do not have that challenge. But if you allow yourself to become a slave of your nafs, you become lower than the animals. Because the animals were not given that intellect. Animals were not given that intellect. You were given that intellect. You stoop to that level, even the animals, because तुम्हें देने के बावजूद तुमने नहीं किया. Like imagine करें एक बंदा जिसकी बाप की तरफ से उसको पूरी inheritance मिली, लेकिन he ends up on that road in spite of having that head start. तो आप क्या बोलोगे यार, आप तो बिल्कुल वो जो रोड पे थे वो तो रोड पे है ही, उसको तो नहीं मिला, तुम्हें तो ये privileges मिले थे. सही बात है. तो तुम तो बदतर निकले उससे. तो Allah subhanahu wa ta'ala wants us to be able to become, a better version of ourselves. Keep on trying. You're going to fall short. You're going to keep on learning. You're not meant to be able to make perfect decisions every time. You're not meant to be able to do that. Don't overstress yourself. Learn from mistake. Take advices from people who matter, not the era जो बेचारे आपके जो यार हैं जिनको घर वाले अभी भी पॉकेट मनी देते हैं. Take advice from those who actually matter, experienced individuals, sensible individuals, and learn. ये रिसोर्स को यूटिलाइज कीजिए प्लीज. स्नैपचैट पे अपनी वो ड्राइविंग की तस्वीरें डाल के और खाने की तस्वीरें डालने के अलावा यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट द इंटरनेट कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन योर plagiarized assignments. ChatGPT is way more, AI is way more helpful other than these things. तो अपने आप को यूटिलाइज कीजिए. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू डिफरेंट. अदरवाइज आप भी वही चाल चलोगे जो सबको थी, तो फिर देन व्हाट मेक्स यू एनी डिफरेंट. Definitely. Sheikh, do you also think that the masajid play a huge role in this? क्योंकि वो एक community को they bring together for the congregational prayers, right? तो क्या हम as the youth we can work towards making the masjids into places of healing, in places of where you can just go without any judgments, instead of just keeping it limited to the prayers? If we keep it like this, do you think it would be helpful? That's how the first masjid was, as a community center. But unfortunately, I think that is something which we need to try towards, but not something that if it does not work out, we should not be working on the other end. That's exactly what we're doing. Yeah. हमें community centers की जगह नहीं मिल रही होती, finances नहीं होते, मसाजिद इजाज़त नहीं देते. तो we do whatever is in our limits to be able to make things improve. बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, बिकॉज देखिए डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई है. यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की, मदारिस की, बैकग्राउंड की, वो इंटरमिंगल नहीं करते, बिकॉज ईच वन इज़ अ थ्रेट टूवर्ड्स द अदर. वन नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड द अदर नीड्स टू अंडरस्टैंड कि दोनों की रिक्वायरमेंट है. हमारे जो मदारिस के बच्चे आते हैं उनकी रिलीजियस एजुकेशन तो होती है, बट टू बी एबल टू अर्न अ स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड एंड नॉट बी डिपेंडेंट एंड जस्ट रिजॉर्ट टू टीचिंग रिलीजन eventually ends up being problematic. Why? जैसे एक स्टेटमेंट है इमाम अहमद इब्न हंबल की तरफ एट्रीब्यूट होते हुए कि अपने स्टूडेंट्स को, जो रिलीजियस स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई हुनर भी सिखाओ, टैलेंट भी सिखाओ. बिकॉज अगर तुम उनको टैलेंट सिखाओगे, कोई हुनर सिखाओगे, तो वो उसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी का माश जो अर्निंग वो कमाएंगे. अगर नहीं सिखाओगे तो देन दीन के ज़रिए कमाएंगे, बिकॉज दैट इज़ ऑल दे हैव. ठीक है. तो वी नीड टू बी एबल टू स्ट्रेंथन आवर यूथ. एट द सेम टाइम हम अगर अपने यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स को खाली दुनिया सिखाते हैं, तो फिर हमारी दुनिया में आने का जो मामला है फिर वो क्या होगा. जैसे किसी ने कहा था ना कि क्रिश्चियनिटी में कि आपके जो बेहतरीन लोग कौन हैं. शेख यूसुफ ने पूछा था एक प्रीस्ट से कि आपके बेहतरीन लोग कौन हैं. तो हमारे पोप होते हैं, हमारी नन्स होती हैं, फिर आर दे अलाउड टू गेट मैरिड? तो नो. तो इसका मतलब है कि जो बेहतरीन लोग हैं दे कांट मल्टीप्लाई, और जो बदतरीन लोग हैं दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग. तो
तो हमारी जो दुनिया के अंदर लोग आएंगे वो कौन आएंगे, जिनके अंदर दीन नहीं होगा, जिनके अंदर Definitely. गॉड फेथफुलनेस नहीं होगी। बिल्कुल और जब वो ओवर पावर करेंगे तो जो दीनदार तबका होगा, जब उसके ऊपर प्रेशर आएगा अबाउट क्राइटेरिया, तो यहाँ के हार्ट्स करप्ट होंगे नहीं होंगे। तो यहाँ के हार्ट्स करप्ट होंगे तो फौरन वो किस चीज़, उनके पास क्या रह गया है इस्तेमाल करने के लिए, क्या चीज़ से अट्रैक्ट करने के लिए, दीन रह गया। हम्म, तो हर किसी का दिल तो नहीं होगा, तो वी नीड टू बी एबल टू क्रिएट अ सिस्टम which is going to facilitate both ends and develop a society which has the means to, but unfortunately we're not able to utilize those means in the best manner possible. Okay. Sheikh, in this era of Netflix, Bollywood, Hollywood and whatnot, हमारी यूथ जो है वो अट्रैक्ट होती है इन सब चीज़ों की तरफ, एंड एक हिपोक्रेसी है कहेंगे कि एज अ नेशन वी टेक प्राइड इन इस्लाम एंड बीइंग मुस्लिम्स, बट एट द सेम टाइम इससे पीछा छुड़ाना वाली बहुत मुश्किल हो जाता है हराम कंटेंट से, एंटरटेनमेंट कंटेंट से। तो इसको किस तरह से हम ऑल्टरनेटिव पाथ पे कैसे ले सकते हैं हलाल एंटरटेनमेंट की तरफ, और इसके क्या मीन्स हो सकते हैं, और हलाल प्रोडक्शन सेंटर्स किस तरह से हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे ला सकते हैं इसको। एंड आई थिंक नैमा, Yes, Youth Club has been working actively for that. Mashallah, say, your film recently got released, Hidden Sins, as well. We hope we get to see it in Karachi soon as well. So, do you think कि इस तरीके के content से हम youth को promote करेंगे, और अगर हम इसके अंदर दीन को शामिल करें, अगर हम इसके अंदर productive चीज़ों को शामिल करें, तो would the youth still be attracted to it? Do we have देखिए, ways? there's a long way to go about it, because अभी जो आपने बात की Hidden Sins की, एक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है रिलीजियस माइंडसेट की तरफ से। दे डोंट अंडरस्टैंड कि देखिए हर चीज़ का हमने ऑल्टरनेटिव भी नहीं निकालना होता, जी। ये भी समझना ज़रूरी होगा। बट ये कि जो रोल प्ले है, जो मैसेज को पुट अक्रॉस करना है इन द लैंग्वेज, जो रिलेटेबल होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। रिमूविंग दोज एलिमेंट्स जिसको अल्लाह ताला ने मना किया है। इसकी दलील हमें क्या मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका अपनाया था माउंट सफ़ा पे खड़े होके, जो राइज था, प्रिवेलिंग था मक्का वालों में कि ये चीज़ अटेंशन गेन करती है, बट Prophet ﷺ did not acquire the same attitude of taking off their clothes. They would not just stand on this Mount Safa but also take off their clothes, कि बहुत important बात है। तो Prophet ﷺ खड़े हुए थे, अनाउंसमेंट की थी, बताया था लोगों को which would gain their attention। तो जो हलाल मीन्स होंगे, जो हमारी यूथ को बुलाने वाले के तरीके होंगे, नहीं होगा। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है जो मैं अभी मेंशन करने जा रहा हूँ, लेकिन हमारे यंगस्टर्स को का माइंड नहीं उधर आता। अब एक बंदा सिर्फ 3 मिनट तक खाली इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु पढ़ता है, वो एक तबके में चलता है, उधर रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन हमारी यंगस्टर्स की अटेंशन गेन करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्रीची हो, आप एक रोल प्ले भी कर सकते हो, अच्छी प्रोडक्शन भी बना सकते हो। आपको एंड दिस इज़ द वेरी आइडिया व्हाई वी वर लॉन्चिंग इट, and we had a separate launch for brothers and sisters, but when we did for sisters, everybody started talking on social media, sisters के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब तो ना कोई शाहरुख खान, सलमान खान थोड़ी आ रहा है, कोई बॉलीवुड का आइटम नंबर थोड़ी हो रहा है भाई। it's to be able to emphasize why these things are needed. The female speakers are going to be there, food is going to be there. It's just going to be a 10-15 minute movie hardly, because it takes a lot of time to be able to make a 10-15 minute production. We've been trying level best in Karachi to be able to make a lot. We have the script, we have the, but of course productions take a lot of time, it requires a lot of resources, and you have to be able to dedicate yourself towards that production. But at the same time लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि देखिए ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आपकी यंगस्टर्स हर वक्त लेक्चर सुनने के मूड में नहीं होती। They need to, Netflix is doing the exact same thing. They are projecting the LGBTQ agenda through and other agendas through their Netflix movies and series। वो उसमें डालते हैं, वो आपको moral policing करते हैं, but in a manner जो आपको पता भी नहीं चलता। They create idols, they create personalities, they create influencers to be able to surround you constantly with those ideas that this is what you need to follow। तो आपने उस बैटल को, उस 5th generation warfare को से लड़ना है, आपने alternatives करना है, but at the same time keeping the pure essence intact, so that the idea is कि लोग उस तरफ आए। हम मिसाल के तौर पे लोग बोलते हैं यार सर हमने म्यूजिक छोड़ के नशीद सुनना शुरू कर दिया, fine, but you should not be stopping at nasheed, you should be moving more and more closer to Quran,
अब आप नशीद पे अटक गए हैं, फिर आप जाहिर में क्या नाम हो गया बोले उसको सुन माहिर रहे हैं, जान। ठीक है, अब फना को सुन रहे हैं, अब आप वहीं पे अटके हुए, then you still in that pond where anytime you can be taken aback because almost बहुत सारी जो नशीद आ रही हैं problematic, ठीक है, they're almost as the musical because जिस एलिमेंट को रोका गया था उसी से आपने नहीं किया, तो आप कुरान की तरफ अगर नहीं आएंगे तो फिर आपका वो हार्ट उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं आएगा जिसके लिए डिजायर्ड है। इसीलिए आपने ये सब चीजें करनी है, बट द वेरी आइडिया इज टू मेक देम कम टूवर्ड्स दैट सीरियसनेस, दैट कुरान, दैट लाइफस्टाइल, दैट नो element of Dajjali fitna is going to be able to break you down, and that is the kind of people we need to, and they are going to be very few, but still आपने करना है। तो इसलिए ये सब चीजें कीजिए, सब कुछ कीजिए, बट ये हमारा असर नहीं होगा, दिस नॉट गोइंग टू बी अ प्राइमरी गोल। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारी यंगस्टर्स है ना, जितना बचा सकते हैं उनको बचाने के लिए करें। तो आप स्किट्स लेकर आएंगे, कभी कभार मेरी टॉक्स होती हैं वो बहुत फनी होती है, लोग लगेगा भी नहीं कि रिलीजियस टॉक है, बिकॉज आई नो कि 4 लोग लेक्चर दे के गए हैं, दे आर गोइंग टू स्लीप नाउ, उससे शायद एक बात भी मुश्किल से क्वाइट है, तो मैं कभी हंसी मजाक करके कोई और बात करके इस तरह से करके निकल जाता हूँ, बिकॉज आपका थोड़ा बच्चों को देखना है, वो 5 मिनट नहीं बैठ सकते किसी चीज के सामने, आप उनको कितने लंबे लंबे कॉन्फ्रेंस के लिए बिठाएंगे। तो दे नीड ऑल्टरनेटिव्स, दे नीड टू बी सराउंडेड बाय प्योर कंटेंट अराउंड देम। हर चीज का ऑल्टरनेटिव नहीं होगा, अब आप बियॉन्से का ऑल्टरनेटिव नहीं लेके आ सकते, ठीक है, जिसने बियॉन्से देखनी है सुननी है वो देखेगा। तो मसला यहाँ पे ये हो रहा है कि आपने उसको मिनिमल या जितना हो सकता है जितना आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर उसको समझ भी देनी पड़ती है, नहीं बेटा ये नहीं करना, ताकि उसके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो। जब आप उसको दबा देंगे ना, बोलेगा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो जब इंसान अंधेरे का आदी होता है ना, तो जब उसको रोशनी थोड़ी सी भी दिखाई जाती है ना, तो उसकी आंखों में चुभती है। तो हमारे बच्चे अभी बेचारे अंधेरों में सराउंडेड हैं, तो जब रोशनी ज़रा सी दिखाते हैं ना, तो बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं, हमारी आंखों में तकलीफ हो रही है, पर असल में वो रोशनी होती है जो उनको देखने पर जो है ना एबिलिटी डेवलप करती है। Definitely. Coming towards the last question for today's podcast, ये एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन था और मेरे जहन में काफ़ी अरसे से था। शेख, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि फॉर आवर ब्रदर्स जो कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स वाली चीज़ है, मसाजिद के अंदर जाने वाली चीज़, इट बिल्ड्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। फ्राइडे खुतबाज हैं, उनसे आप कनेक्टेड रह रहे हैं, आप अपनी एज के लोगों को भी वहाँ पर जाते हुए देख रहे हैं, आप मोटिवेट भी हो रहे हैं। फॉर वुमेन, our ibadah has been very private, and while that's beautiful in its own way, it can also feel a bit isolating at times because you just want to be part of something bigger, you want to feel included in the ummah, that you're here to make a change. So how do you think we can generalize these things for women, and how can women feel connected to deen in a stronger way अपनी उसी प्राइवेट इबादत के ज़रिए? देखिए, आपने जो बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बहुत अर्से से एम्फसाइज करता हुआ आ रहा हूँ। यू कांट डिसोशिएट women from the masajid, from religious responsibilities, and yes, it is important for them to be able to उनकी obligation नहीं है घर में, बट आप जब चाहते हैं कि आपकी उम्मत डेवलप हो तो आपकी जो फीमेल पॉपुलेशन है उसका रिलीजियसली ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। You look at the life of Imam Ahmad ibn Hanbal, you look at the life of Imam Shafi, Imam Malik, mothers played an important role. बाहर खड़ी रहती थी इमाम अहमद इब्न हम्बल की मदर, इंक नहीं होती थी तो उनके लिए पेपर्स जमा करते थे। इमाम अहमद इब्न हम्बल वुड एक्चुअली बी एबल टू नॉट हैव एनीथिंग, तो वो इस तरह से मार्किंग करते थे अपने पेपर के ऊपर। इमाम मालिक वुड एक्चुअली नोटिस दैट, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एक इंसिडेंट है जो मैं आपको कोट करता हूँ कि जब इमाम मालिक ने बहुत अच्छा सिखा दिया था तो बहुत सारा वेल्थ और पगड़ी शगड़ी देकर, टर्बन शर्बन देकर भेजा था। तो उनकी वालदा ने उनसे पूछा था कि जना कि क्या लेकर आया हो, तो उन्होंने कहा था कि मैं इल्म लेकर आया हूँ और मैनर्स लेकर आया हूँ, बोला नहीं अभी तक किसी के जाओ। तो जब इमाम मालिक के पास गए तो इमाम मालिक मुस्कुराना बोला, व्हेन यू गो नेक्स्ट टाइम अपनी मदर को कहना मैं अदब लेकर आया हूँ, मैनर्स लेकर आया हूँ और नॉलेज लेकर आया हूँ। तो मैनर्स पहले, तो ये माओ ने सिखाया है मैनर्स। उनके लिए ऑब्लिगेटरी इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह ने आसानी की है। आप उस आसानी के चक्कर में उनको लॉक आउट नहीं कर दोगे मस्जिद से।
अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें बहुत सालों पहले बहुत कॉमन थी, लेकिन अब मसाजिद के अंदर है। इफ़ यू लुक एट द नरेशंस सहाबा से, तो जो सहाबियात हैं वो मसाजिद में आती थी, लेकिन उनके लिए ऑब्लिगेशन नहीं है। नोइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए जो सोशल सिस्टम में रखा हुआ है, तो उनके लिए अगर फ़र्ज़ होता तो उनके लिए फ़ॉल शॉर्ट करना फिर बाद में गुनाह का ज़रिया बन जाता। अल्लाह ताला ने वो आसानी की है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारी जो तरावी होती है, हमारे जो मामलात होते हैं, हम उसमें ये चीज़ें करते हैं। हमारे इवेंट्स होते हैं, हम उसमें चिल्ड्रन सेक्शन वगैरह अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करते हैं। बट अगेन उनके लिए कोर्सेज़, उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़, ये सब प्रोवाइड इसलिए करना ज़रूरी है बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आवर मेन डिपेंड अपॉन इट। ठीक है? तो आप कैसे एक बैकबोन को कमज़ोर कर दोगे और बोलोगे कि आपके खालिद बिन वलीद निकलेंगे, इमाम बुखारी निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, वो एलेक्स भट्टी निकलेंगे। तो आपके पास जो है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपनी जो सोसाइटी की फीमेल्स हैं उनको बेहतरीन एजुकेट करें, उनको सिखाएं, उनको बेहतरीन अंदाज से एजुकेट करें, उनको वो फैसिलिटीज़ दें, उनको ग्राउंडिंग दें। आप रमज़ान में देख रहे हैं, जब फीमेल्स आती हैं मसाजिद के अंदर तो अजीब ही मामला होता है, कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। जो इबादत करना चाह रही होती हैं वो इबादत नहीं कर पाती बिकॉज़ कुछ बातें कर रहे होते हैं। ये मर्दों के साइड पे भी हो रहा था, लेकिन चूंकि उधर एक चलता आ रहा है तो वहां पर एक चीज मेंटेन्ड होती है। तो आप जब नहीं बुलाएंगे तो लोगों को नहीं तरीका पता होगा किस तरह से मसाजिद में आना है। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, दे नीड टू बी एबल टू गेट इनटू दैट प्रैक्टिस। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों के बारे में। Sheikh, before we proceed to the end, we would be honored if you enlighten us with some pearls of wisdom and last message to the youngsters. पर्ल्स ऑफ विजडम की तो ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, बट ये कि ट्राई एंड बी कंसिस्टेंट एज मच एज पॉसिबल। बहुत टाइम ऐसा आएगा वे यू विल फेस अप्स एंड डाउन्स। आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स आएंगे, आपकी ज़िंदगी में रिलेशंस के इश्यूज आएंगे। आप समझ रहे हो कि शायद मैं रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, एवरीथिंग इज गोना बी अ पीस ऑफ केक। नो, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे के मामलात को कभी कभार देखता है। शायद वो बिज़नेस करने जा रहा हो, शादी करने जा रहा हो, कोई चीज़ करने जा रहा हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शदीद मोहब्बत होती है कि अल्लाह ताला देखता है कि नहीं, इसके लिए आगे जाके ये आखिरत का नुकसान बनेगा या उसके लिए दुनिया के लिए बहुत नुकसान दे होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे ले लेते हैं चीज़, और बंदा शिकायत कर रहा होता है कि मुझे नज़र लग गई, किसी ने जादू कर लिया, फलां ये हो गया, और अल्लाह ताला ने सिर्फ मोहब्बत की वजह से उसे दूर किया होता है। तो अल्लाह ताला अगर आपसे कोई चीज़ लें तो शिकायत ना करें, सब्र करें और उसको अनवील होने दें। अल्लाह आपको आपसे आपकी नाफरमानी के बावजूद भी आपसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ बेवफ़ाई करेंगे ना तो कहीं के नहीं रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अगर धोखा करेंगे तो कभी कोई आपको वफ़ादार नहीं मिलेगा। आपको उसी से धोखा मिलेगा जिससे आपसे ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे। अल्लाह ताला के साथ वफ़ा करें, अल्लाह ताला के साथ रिलेशन बिल्ड करें। ही ओन्स द हेवंस एंड द अर्थ एंड ही कैन चेंज scenarios overnight if he wants to. But he's not, because he wants not just change for you, but he wants you to earn that paradise. अल्लाह को पता है आप जन्नत में जाओगे या नहीं, लेकिन अल्लाह ताला चाहते हैं कि he wants you to hear it from you on the day of आखिरा। या अल्लाह, I did this and I was deserving of it, yet Allah was like, yes my boy, you deserved it. And you know, Allah, I went through that, everybody was doing it, I wasn't doing it. He wants to hear it from you rather than hand it over to you. ये लो, तुम्हें मैंने सदके में दिया था। Allah wants you to be able to allow you to sit down and be able to listen from you your complaints, and I've made this dua, Allah, why didn't you not reply to me? Because I was preparing this for you. You saw it later on, and even not in the world, in this akhirah. So he was like, but Allah Ta'ala, ठीक है, आपको पता तो आपने मेरी सारी दुआएं क्यों कबूल कर ली? Because I realized that you were not willing to be able to understand this. So it is very important for me to accept your duas and at the same time give you as a side treat all what you did not ask for. So don't think of Allah from your perspective. Okay? Try and know about Allah. Try and find out about Him. You will not be disappointed, inshallah. Jazakallah, Sheikh. Here we are at the end of this episode, and thank you so much, Sheikh Wajuddin, and it's definitely a pleasure and honor to have you. And to the viewers, I hope you feel as spiritually enlightened as we did while talking about this topic, and see you next time.